नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक व्यास। आज ITV गोल्ड पर इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे एक ख़ास रिपोर्ट इंडिया डे परेड हिक्सविल की। साथ ही आपको लिए चलेंगे न्यू जर्सी, जहां रॉयल अल्बर्ट पैलेस में हुआ आयोजन सत्कार समारोह एवरेस्ट की चोटी छू कर आए आकाश नेगी का। इस आयोजन पर रिपोर्ट के अलावा आप मिलेंगे अनीता अजमेरा से, जो बताएंगी किस तरह मधुरता के साथ भारत के स्वाधीनता दिवस को मनाने की तैयारियां मधुरम कर रहा है। और आपको मिलवाएंगे ग्लोबल हीलिंग डे के बारे में बातचीत करते हुए श्री कृष्ण गुरु जी से। तो ये सब प्रतीक्षा करेगा आपकी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम, और अब आपको लिए चलते हैं इंडिया डे परेड हिक्सविल की एक रिपोर्ट की तरफ। इस बार अध्यक्ष के रूप में दीपक बंसल ने अपने सहयोगियों के साथ न केवल भारतीय मूल के भारत प्रेमियों को जोड़ा, बल्कि कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा लेने पहुंचे। और बरखा के बावजूद देर रात तक तो नहीं, लेकिन देर शाम तक 7 बजे तक लगभग बहुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। तो पेश है इंडिया डे परेड की ये विशेष रिपोर्ट। Namaste, the viewers of ITV Gold. It's really a pleasure to celebrate the 75th Independence Day of India in Hicksville, Long Island. I'm a proud founder of India Day Parade on Long Island. My best wishes to all of you, and my special thanks to Dr. Sudhir Parekh for supporting the event. Thank you. Hello everybody, I am Jyoti Gupta, IDP cultural chair with Amita Karwal also in cultural. And today we organize a very good cultural program for everyone. Lots of bhangra, garba, dances, mostly patriotic songs. And we have to create this kind of atmosphere which we never created before. Thanks to God, it was supposed to be rain, but it's very shining today. So thanks ITV and everybody for joining this IDP parade to celebrate India's 75th Independence Day anniversary. Just come and enjoy the parade. You're going to have lots of fun. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai, and all the good luck to the ITB committee and Mr. Deepak Bansal, the president, who has done the wonderful job for today, and wish him all the good luck. And the rain is not going to rain because I have already sent a request to the God. Thank you. Hello, and a very good morning to all our viewers. This is Dr. Bhavani Srinivasan calling from the India Day Parade. I'm one of the directors here. Congratulations to our president, Mr. Deepak Bansal. And look at this, Mother Nature has smiled on us, you know. She stopped the rain
And we're going to have a wonderful day at the parade. Come out and enjoy it. All right. Hello, everyone. We are here in Hicksville, and we're going to have an amazing, amazing India Day parade. You know, we have our community coming together, and this is such an awesome festive time. I am the state senator that represents this area. I'm Kevin Thomas, the first Indian American to represent the state up in Albany, and I'm so proud that we're doing this in my district. So happy Independence Day and Jai Hind. Happy India Day, and we are so happy to be here and support this event today. Thank you. Nassau County Legislator Ronnie Drucker. It's my honor and privilege to be here today to celebrate Independence Day. Thank you. Hi, I'm Supervisor Joe Saladino. What a thrill to be here with such important people like Tom DiNapoli and Deepak and our team from Oyster Bay. State Controller Tom DiNapoli, happy to join all of my Nassau County friends. I'm Tom Hand. Happy to be here with you today. Thank you everyone coming over here, joining our Independence Day. And I'm thankful to our county executive as well as our state department and our town supervisor Saladino, who has given us permission to do this parade, and we are really honored we have them here. We have a Grand Marshal, Dr. Jay Sarkar, as well as we have a celebrity actress, Elena De Cruz. So she is also joining us with the parade, and we have our guest of honors, Dr. Noori Naveen Shah ji, CEO of Navika Group, Ranju Batra ji, Diwali Foundation President, as well as Ishan Shivanand ji. So from Shivyo, everybody is participating in the parade. So please have fun and enjoy. Hi, I'm Town of Oyster Bay Supervisor Joe Saladino. I'm here with all my friends, including Megan McCarty and Jennifer DeSena. We're here with Tom Hand, councilman in the town, and Rich Lamarca, our town clerk, as well as our New York State Controller, Tom DiNapoli. And why? Because we're here for the excitement and the celebration that is the 10th annual India Day Parade in beautiful Hicksville. The crowds are coming, we're having a great time, and we want to say congratulations. Good afternoon. India is celebrating the 75th anniversary of the independence, and we are here at Hicksville, and we are really thrilled to celebrate the India Independence Day. My name is Dr. Jay Sarkar. I am the Grand Marshal representing the Americans in New York, and we came from India, and now we have adopted this land of America, and we're really grateful to have come from India, our motherland, and we are so thrilled to celebrate the Independence Day today, and we welcome you all to join us today for the celebration of India's Independence Day. Thank you very much. Hi everyone, I'm Nassau County Executive Laura Kerr, and very happy to be joined by Senator Kevin Thomas. We're here at the India Day Parade. You can hear the music, you can hear the excitement. I am personally so grateful to all of the contributions of the Indian community right here in Nassau County. The community is growing, it is vibrant, it is diverse, and we're here to celebrate. Thank you very much. Hi, I'm Senator Todd Kaminsky, wishing everybody a happy Independence Day. Really proud of the Indian American community here in Nassau County, thriving, moving forward. And we all have to be together. We survive and thrive here in Nassau because we're one community full of tolerance and love. God bless. Hi, my name is Harish Thakkar. I'm here to support our Independence Day. You see here it's raining, but you see thousands of people here and to respect our country and celebrating this Independence Day. And I see this team, IDP team, work really hard for last couple days to put this event together. ऊंचाइयां छूने का सपना हम सबका होता है, पर आकाश न केवल उनका नाम है बल्कि उन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने में भी सफलता प्राप्त की। लगभग 3 महीने पहले आकाश नेगी 46 दल के एक सदस्य के रूप में तूफान का मौसम की बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, कोविड-19 के कारण आई कुछ अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करते हुए भी एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में सफल रहे और उनकी सफलता को उत्सवमय ढंग से मनाया गया। उनका अभिनंदन किया गया रॉयल अल्बर्ट पैलेस में, जहां ITV गोल्ड और पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारीख भी उपस्थित थे। तो आइए मिलते हैं आकाश नेगी से।
really we are all proud of you. And congratulations to Mr. Negi and Mrs. Negi for having this kind of proud son. And really, we wish you all the best in the life. And I'm sure you can achieve quite a bit. And I would ask my media group to take the interview. We'll call you and we'll put you take the interview on the ITV. So people should know, get inspiration how great you are and what are the challenges you came across and so forth. So again, congratulations, Mr. Negi, Akash, Mrs. Negi. Thank you. Hello, my name is Akash, and I just came back from Everest 3 months ago. It was an extraordinary trip. We were about 46 people, but this season was especially difficult because of COVID and because of travel restrictions and so many other things. The weather was not conducive either. We had a lot of cyclones towards the end of the month in May, and because of that we were delayed a lot. But it was a trip that I had been looking forward for many years, and I trained very hard for it for many months, and I was not ready to give up the trip because of these reasons. So we were about 46 people, about 10 summited Mount Everest, and I was one of the lucky ones to go up to the top, May 23rd at around 7:57 a.m. Thank you ITV Gold for coming and covering this event. बहुत अच्छा लगा. I again want to thank Dr. Sudhir Parikh, जो मेरे एक शॉर्ट नोटिस पे परसों मेरी बात हुई और डॉक्टर पारिक was here with his wife, with his crew, ITV Gold, और अपनी जो 4-5 इनकी न्यूज़पेपर्स हैं, देसी टॉक वगैरह, वो सब लोग यहाँ पे हैं. थैंक यू वेरी मच ITV Gold फॉर कवरिंग दिस. एंड या मेरा ये मानना है कि सेलिब्रेशंस Success should not be celebrated alone. It has to be celebrated with family, friends, and the community. And thank you, ITV Gold. Yeah, as Bhavna said, this took a lot of hard work over the last 1 month, and a lot of it was done behind Akash's back. So we're just very happy and we're excited that Akash is back and he has achieved his goals. And so we're very excited, and we are so thankful that we have this opportunity to celebrate. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने इतना हमें प्राउड फील कराया है, और बेटी पायलट बनी है, बेटा एवरेस्ट गया है, तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग एवरेस्ट पे चले गए हैं. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. Organizing this party for Akash since a long time, it was a surprise for him. We had to make sure that he doesn't know about it, and so everything that was done, it was done behind his back without him having any idea about it. So the entire planning committee, which is the 3 of us, we had to plan the entire thing here in his absence. That also included his parents and everybody else who's included here. Yes, आज ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था आकाश के लिए, और हमारी बहुत बेस्ट विशेस है आकाश को. बड़ा अच्छा सब लोगों का जो बेस्ट विशेस उसको मिला, बड़े एक्सपीरियंस लोगों से, और उसने जो काम किया बहुत सराहनीय है. Thank you very much. Hi, my name is Ranu Rawat, and I'm friends with Akash for like almost 15 years. I know him since he was a teenager, and I went with him hiking also, but it's wonderful that he has gone to summit Everest. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी, और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं ITV गोल्ड पर सोम, मंगल, बुध, गुरुवार के अलावा जब शाम 8 बजे ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है. रविवार को एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का सुबह 11 बजे आपकी सेवा में पेश किया जाता है. आपके उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, हमेशा की तरह बने रहे हमारे साथ. जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद. विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं मिठास की तरफ. अनीता अजमेरा न केवल तरह तरह के व्यंजन बनाने की महारत रखती हैं, बल्कि 75वें इंडिपेंडेंस डे को देखते हुए उन्होंने मिठाइयों को भी भारतीय झंडे के रंग के साथ जोड़ने का एक सृजनशील कार्य किया है. उसकी झलक इस छोटी सी मुलाकात में. तो जब ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं तो मुंह में पानी भी आ रहा है, और भारत माता की जय जयकार मधुरता से जो करने वाला एक मन है वो बन जाता है। तो भारतीयता के भाव के साथ जब भोजन की बात आपसे कर रहे हैं तो आप बताइए, इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना जो है वो हमारे भारतीय होने की पहचान के साथ कितना जुड़ा हुआ है? तो खाना मतलब भारतीय पहचान के अंदर खाना, सबसे पहले तो खाना, किसी के भी दिल को जीतना हो तो खाना पेट से होके जीता जाता है। और भाषा है, भोजन है, ये सब भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है आपने कहा। एक्चुअली भेष भी जुड़ा हुआ है, लेकिन भेष तो क्या है, मैं भी जैसे कोट वोट पहन के बैठा हूँ, भारत में भी भेष जो है वो कम होता जा रहा है, भारतीयता वाला। फिर भी जैसे आपका परिधान है उसमें भारतीयता दिखाई दे रही है। और ये हम अगर संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं तो भोजन की बात को लेते हुए फिर आप ये बताइए कि यहाँ आकर जब आपको आए बहुत बरस हो गए हैं तो मिस करती होंगे आप इंडियन फूड को? मिस करते हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड होता है उसको मिस करते हैं। इंडिया में भी हर जगह, हर प्रदेश के अंदर अलग अलग फूड होता है, वहाँ के ट्रेडिशंस के हिसाब से अलग अलग फूड होता है। बट यहाँ पे आके हमने उसको कोशिश किया कि वो ट्रेडिशन बना रहे। फूड इसके परिवार के साथ, मतलब फेस्टिवल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। हर फेस्टिवल का अपना अलग ट्रेडिशनल फूड होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आकर भी फेस्टिवल्स जब आएँ तो वो वाले भोजन के प्रकार, व्यंजन बनाएं जो कि उस ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जैसे न्यूयॉर्क में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के रेस्टोरेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मतलब भारतीय भोजन खींच तो रहा है। हाँ, उसमें समोसा तो बहुत अधिक प्रचलित हो गया। हाँ बिल्कुल। तो समोसा एक ऐसा कॉमन वो है, व्यंजन है जो कि भारतीय जो नहीं भी हैं उनको भी इट रिलेट्स टू देयर ओन ट्रेडिशन ऑल्सो। लाइक पोटैटोज, लाइक एम्पनाडाज होते हैं, कोई भी है तो एक उसका अलग ही टेस्ट है। कुछ तो उसमें है कि वो जनरल लोगों को भी पसंद आता है। बिल्कुल। और ऐसी क्या डिश आप सोच सकती हैं, जैसे आप राजस्थान से हैं और कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जिनमें अमुक प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। जैसे जब हम बात करें 15 अगस्त के आसपास तो एक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बड़ी तीज इत्यादि मनाते हैं, वो सत्तू वगैरह। हाँ, तो वो यहाँ पर जो मिठाइयों की दुकान है वहाँ तो नहीं मिलते होते हैं। नहीं मिलता है। तो राजस्थान में बड़ी तीज आती है जो कि बहुत सेलिब्रेट करी जाती है और उसमें बेसन के सत्तू बनाए जाते हैं और उसका बनाने का एक अपना अलग ही तरीका होता है। घी के साथ में काफ़ी देर तक उसको सेका जाता है और जो इतनी देर सेकने के बाद उसका फ्लेवर ही अलग आता है वो यहाँ पे। और वो ट्रेडिशनल जो राजस्थान का फ्लेवर है वो वहीं के उसके अंदर अच्छा लगता है। तो ये जो जुड़ गया है कुछ संस्कृति, कुछ उत्सवों का एक विशेष प्रकार के व्यंजन के साथ संबंध, तो संक्रांति होती है तो कुछ खाते हैं ऐसा। तो संस्कृति और भोजन और उत्सव और ये सब मेरे को लगता है कि इतने ज़्यादा घुले मिले कि आपका जो ये कुकिंग की तरफ इंटरेस्ट है उसने बहुत हेल्प की होगी आपको और आपके आसपास वालों को भी। तो भोजन अपन बनाते हैं और खाते हैं, क्या होता है, मन की खुशी होती है। तो और अपन सब चीज़ें रिलेटेड है। अपन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी के लिए ही करते हैं। उस खुशी के अंदर अगर अच्छा व्यंजन मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर एक बार आपको गणतंत्र दिवस तो आपने मनाया भी था, वो भी आपने बनाए उस समय, और अभी जो स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आपने मिठाइयाँ बनाई हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए क्योंकि मिठास के साथ भारत से जुड़े रहने का। सो हियर आर फ्यू images again that would remind you of India as well as sweetness, and thank you very much Anita ji for spreading sweetness. Thank you so much. Thank you so much. हम सब चाहते हैं कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे और श्री कृष्ण गुरु जी ने 25 देशों के लोगों को जोड़कर 11 अगस्त को ग्लोबल हीलिंग डे मनाने का जो आयोजन किया है, इसमें बहुत धर्मों के धर्मावलंबी भी
जुड़ने वाले हैं, क्या है उनकी परिकल्पना, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ग्लोबल हीलिंग डे सामान्यतः एक कंसेप्ट इज इन्वेंटेड बाय मी ओनली, मतलब मेरा मन में आया था एक जो चीज कि क्यों ना हम सभी जन्म के समय मानव धर्म प्रथम होता है, मानव धर्म के बाद मानव होने के बाद पता लगता है हम किस धर्म के हैं। तो ये मेरा शुरू से मत था कि क्यों ना एक दिन, हर दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कोई त्योहार को लेकर, कोई फेस्टिवल को लेकर, भगवान को, एक दिन क्यों ना हम ऐसा बनाएं जिसमें सभी देश, वसुंधरा कुटुंबकम, सभी धर्म अपनी अपनी जबान में एक अपने धर्म से ऊपर उठकर मानव धर्म के लिए संयुक्त प्रार्थना करें। मेरा मानना ऐसा कि संयुक्त कलेक्टिवली प्रेयर ऑलवेज ब्रिंग ए मिरेकल्स, and which I personally experienced in my last 5 global healing day. I started from 2016. 2017 I organized the global healing day in the Kuala Lumpur, Malaysia. 2018 in the Ujjain, Mahakaleshwar. 2019 global healing day in the Dubai. 2002 due to COVID online, and this I am also going to online. मेरा स्वयं का अनुभव रहा कि जब जब मैंने कोई संयुक्त प्रार्थना की है, सभी लोगों ने मानव धर्म के लिए प्रार्थना की है, तो कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कार निकल कर आए हैं। यह वो शक्ति ने कराया, मैंने नहीं किया। कुछ ऐसे चमत्कार मैंने महसूस किए, वो चमत्कार की अपेक्षा करके मैंने नहीं किया था कि ये ग्लोबल हीलिंग हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मानव धर्म सबसे बड़ा, ह्यूमैनिटी फ्रॉम फर्स्ट, ऑल रिलीजन, ऑल गेस्ट टुगेदर along with the countries, I'm simple trying, along with their own language, they pray either puja, dua, namaz, ardas, whatever they want to do. तो कृष्ण जी आप ये बताएं कि जो 25 देश जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे धर्मों के सब लोग जुड़ रहे हैं, तो कितने बजे का समय भारत के अनुसार है? अगर कोई दर्शक जी देखिए, भारत का समय जो जी, अगर कोई दर्शक जुड़ना चाहे तो उसका भी कुछ संकेत करें, कैसे जुड़ सकते हैं? तो ये वह चाहे तो भारतीय समय 8:30, ये इसमें लिखा हुआ है 8:30 PM to 9:30, anyone can join and see the live miracles along with the all countries, all regions people have. IST 8:30 to 9:30 है, Zoom ID है, उस पर मेरा नंबर ID दिया हुआ है, डायरेक्ट ID आप डालेंगे तो डायरेक्टली विल एंटर इन द रूम आफ्टर 8:30 PM। तो आपकी कंट्रीज के हिसाब से आप टाइम, जो कंट्री अलग अलग है, 25 कंट्रियां जुड़ रही हैं, उन्होंने अपना समय IST के हिसाब से सेट किया है। और मेरा मानना है कि संयुक्त प्रेयर ऑलवेज ब्रिंग ए मिरेकल, और एक दिन मेरा प्रयास रहेगा आखिरी सांस तक कि मैं कुछ इसको एस्टेब्लिश करके जाऊं कि एक दिन ऐसा हो कि सभी देश, सभी भाषाओं के लोग एक साथ मिलकर मानव धर्म के लिए प्रार्थना करें, और ये जो भी हो जी। और जो मिरेकल की बात आपने की है, किस तरह के मिरेकल, खास करके जब हीलिंग की बात हम कर रहे हैं, तो कोविड से जूझता हुआ विश्व चाहता है कि हील हो जाए, उस दृष्टि से क्या आपने स्वयं अनुभव किया इस ग्लोबल हीलिंग डे के दौरान? नहीं तो कभी करूंगा सर मैं, ग्लोबल हीलिंग डे तो मेरा ये होगा, कोविड का पिछली बार किया था हमने, और अभी ये आवर प्रेयर इज डेडिकेटेड टू द पेंडेमिक फ्री वर्ल्ड। वी ऑल कलेक्टिवली फर्स्ट टारगेट टू पेंडेमिक फ्री वर्ल्ड। आप देखें इसमें कंट्रोल, प्रेयर फॉर पेंडेमिक फ्री वर्ल्ड। मेरा मानना है कि संयुक्त प्रार्थना जब एक लक्ष्य को लेकर की जाती है तो जरूर कोई अच्छे अलौकिक परिणाम देखने को मिलते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है आपके माध्यम से कि अलौकिक प्रेयर अगर उस दिन कही, तो थर्ड लेयर का डेल्टा वेरिएंट का जो फियर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर होगी। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें, फेसबुक पर अगर आप अभी तक ITV गोल्ड के फ्रेंड नहीं बने हैं तो आज ही बन जाइए, साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका हृदय से आभार। बहुत सारी मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। Thank you.